السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا نیم لسٹ کسے کہتے ہیں اور نیم لسٹ ہم لوگوں نے کس طرح سے بنانی ہے اور نیم لسٹ کے زیادہ سے زیادہ بینیفٹ یعنی فائدے کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو بہت سے لوگوں کا کوشچن ہوتا ہے کیا نیم لسٹ بنانا ضروری ہے؟ کیا ہم لوگ بغیر نیم لسٹ بنا کے کام نہیں کر سکتے؟ کیا ہم نے اور لوگوں کو لے کے آنا لازمن ہے؟ اب بہت سے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جو ایسے کاموں کا سن کے ہی ان کاموں کو فوراً ڈسیبل کر دیتے ہیں، یعنی ان کے مائنڈ کے اندر ایک ہی بات آ جاتی ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، کام بہت مشکل ہے۔ بھئی بات سنیں، کام کہاں پہ مشکل ہے؟ کام مشکل نہیں ہے، مشکل ہے تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے اس طرح کا کام کیا ہے یا آپ کے کسی فرینڈ نے آپ کے کسی دوست نے کام کیا ہے نیٹ ورک بلڈ کرنے والا، وہاں پہ آپ کو ناکامی ہوئی ہے، اس سسٹم نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، تو آپ کے مائنڈ میں ایک ہی بات آ رہی ہے کہ بھئی کوئی بھی کام ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی بھی کام آپ لوگ نہیں کر سکتے جس کے اندر نیٹ ورک بلڈ کرنا آتا ہو۔ بھائی سب سے پہلے تو یہ بات آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہونی چاہیے کہ آج ہم لوگ سٹوڈنٹ ہیں، اگر ہم لوگ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، ایم فل کر لیتے ہیں، گریجویشن کر لیتے ہیں، میں میڈیکل فیلڈ کا سٹوڈنٹ ہوں، اپنی فارمیسی کمپلیٹ کر لیتا ہوں، کیا ہم لوگ اپنا کوئی بزنس، اپنا کوئی سیٹ اپ اکیلے رن کر پائیں گے؟ نہیں۔ ہم لوگ اگر اچھا پڑھ لکھ جاتے ہیں، ہمارے بہن بھی اچھا پڑھ جاتے ہیں، اگر ہم کوئی اپنا اسکول بناتے ہیں، کالج بناتے ہیں، یونیورسٹی بناتے ہیں، اپنی فارمیسی بناتے ہیں، کلینک، ہاسپٹل، اینی ون کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، کیا ہم لوگ اسے اکیلے چلا پاتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کام کو چلانے کے لیے ہمیں ایک سیٹ اپ کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہم بھی بہت سے سیٹ اپس کا حصہ ہیں، ہم بھی بہت سے نیٹ ورک کا حصہ ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر کتنے نیٹ ورک ہیں، جیز، ٹیلنر، زونگ، یو فون، کسی نہ کسی ایک سم کو یوز کرتے ہیں، باقی کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ہم بھی کسی یونی کے اسٹوڈنٹ کے نیٹ ورک کا حصہ ہیں، کسی کالج کے نیٹ ورک کا حصہ ہیں، کسی مدرسے کے نیٹ ورک کا حصہ ہیں، کسی شاپ کیپر کے کسٹمر کے نیٹ ورک کا حصہ ہیں، کسی ڈاکٹر کی کلینک کی ہاسپٹل کے نیٹ ورک کا حصہ ہیں، پیشنٹ نیٹ ورک کا حصہ ہیں کسی ڈاکٹر کے۔ اسی طرح ہم لوگ بھی اپنی گاڑی، اپنی بائک، اپنی کار ٹھیک کروانے جاتے ہیں تو وہاں کے مکینک کے کسٹمر نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو نیٹ ورک بنانا پڑ جاتا ہے تو آپ کے مائنڈ میں یہ بات کیوں آ جاتی ہے کہ یہ بزنس ناکام ہے، ہم نہیں کر پاتے، ہاں لوگ ہمیں نو کرتے ہیں۔ بھئی دیکھیں اس میں اگر آپ کو لوگ نو مینز نیکسٹ اپرچونٹی، کوئی ہمیں لاکھوں کروڑوں ہزاروں لوگ نہیں چاہیے ہوتے، ہمیں جسٹ اپنے بزنس کی پریزنٹیشن دینے کے لیے، آگے انوائٹ کرنے کے لیے، ہمارا کام ہے جسٹ لوگوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر دینا، آگے کریں یا نہ کریں وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مالی کا کام ہے پانی لگانا، پھل پھول لگانا ہے اللہ پاک کا کام۔ جب مالی ہی اپنے حصے کا کام نہ کرے، پانی ہی نہ لگائے، کیا پھل پھول لگیں گے؟ بھئی نہیں لگیں گے۔ بہت سے لوگ نیم لسٹ کا سن کے یا نیٹ ورکنگ کا سن کے یا ٹیم ورک کا سن کے ان کے مائنڈ کے اندر فوراً نیگیٹو باتیں آ جاتی ہیں کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ بھئی کیوں نہیں ہوگا؟ جہاں سے آپ سے جو کام آپ سے نہیں ہو رہا، جو سٹیپ آپ سے نہیں ہو رہے، آپ وہ سٹیپ کریں ہی نہ، آپ وہ سٹیپ اپنے سینئر سے کروائیں۔ چلتے ہیں نیم لسٹ کے حوالے سے۔ نیم لسٹ جیسے کہ آپ کو سکرین کے اوپر شو ہو رہا ہے، نیم لسٹ کے اندر آپ لوگوں نے سمپل اور سادہ طریقے سے بنانی ہے۔ سلائیڈ کے اوپر آپ کو شو ہو رہا ہے، اسے ریڈ کر لینا، جو سمجھنا ہے آپ نے مجھے بتا دینا ہے۔ ایک پیج کے اوپر آپ نے 6 سے 7 خانے بنا لینے ہیں، لکیریں ڈال لینی ہیں۔ ایک آپ نے جہاں پہ لکھا ہوا ہے یور سیلف والی جگہ پہ آپ نے نام لکھ لینا ہے، ندیم، عائشہ، کوئی بھی آپ نام لکھ سکتے ہیں، نام لکھ لینا ہے۔ اس نام لکھنے کے بعد آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے، موبائل نمبر لکھنے کے بعد آپ نے کوالیفیکیشن لکھنی ہے، اس کی کتنی ہے، کوالیفیکیشن کے بعد آپ نے لکھنا ہے اس کا پروفیشن، اسٹوڈنٹ ہے، جاب ہولڈر ہے،
फ्री है। उसके बाद आपने लिखना है एड्रेस। एड्रेस वाली जगह पे सिर्फ आपने डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना है, मुल्तान, कराची, लाहौर, पेशावर, सरगोदा। उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे कि वो चाहता क्या है, कोई एक्सपीरियंस भी है या नहीं, एक्सपीरियंस कोई काम किया है या फ्रेश है, यहाँ पे आपने उसका वो एक्सपीरियंस लिख लेना है। इस तरह आप एक पेज के ऊपर 7 से 8 कॉलम बना लेते हैं। उसके अंदर आपने नाम इस तरतीब से लिख लेना है, नाम लिख लेना है, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट नेम, एड्रेस यानी उसका क्वालिफ़िकेशन, उसका एक्सपीरियंस और वो करता क्या है, प्रोफेशन। आगे आप अगर चीज़ एक और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं कि वो नेक्स्ट उसकी ख्वाहिश क्या है, वो इंटरेस्टेड है या नहीं, किस काम में वो इंटरेस्टेड है, ऑनलाइन वर्क में इंटरेस्टेड है, ऑफिस वर्क में इंटरेस्टेड है, उसके पास कौन सी स्किल हैं, फाइवर से रिलेटेड स्किल हैं, फ्रीलांसर है, डेवलपर है, डिज़ाइनर है, लोगो डिज़ाइनर है, क्या कर सकता है। नेक्स्ट नेम लिस्ट के अंदर किन लोगों को ऐड करना है, रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड, स्कूल फेलो, कॉलेज फेलो, क्लासमेट, कॉलेज, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, यानी तमाम लोगों को हमने क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि मैं सिर्फ उन लोगों को ऐड करूँगी जो मुझे लगेगा कि काम करेंगे। भाई आज के दौर में किस बंदे को काम नहीं चाहिए? आज के दौर में ऐसा कौन बंदा है जो कहता है मैं अपॉर्चुनिटी नहीं लेता? मेरे पास ऐसे भी फीमेल मेल हैं जो ऑलरेडी 3 जॉब्स करती हैं, चौथी के भी चक्कर में हैं कि हम जो नाइट में जल्दी सोती हैं, 8-10 घंटे सोने के हमें मिलते हैं, हम उसमें से भी आपको 1 घंटा दे सकते हैं। अगर कोई ऐसा काम आए तो आप हमें बता दें। देखें, अब बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों का ये क्वेश्चन इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों ने, हम लोगों ने पहले कहीं ना कहीं काम किया होता है, वहाँ से हमारे साथ धोखा होता है, फ्रॉड होता है, वहाँ से हमारे साथ स्कैम हो जाता है। नेक्स्ट हम चाहते हैं पहले मैं खुद काम करूँगी फिर मैं और लोगों को ऐड करूँगी। भाई देखें, आपकी बात ठीक है, अगर हम लोग किसी होटल से खाना खाने जाते हैं और वहाँ का वेटर हमें अच्छी सर्विस नहीं देता तो इसका कभी भी ये मकसद नहीं बनता कि हम लोग खाना खाना छोड़ दें, बल्कि उसका ये मकसद है कि हमें वो होटल छोड़ देना चाहिए जहाँ पे हमें अच्छी सर्विस नहीं मिल रही। हमें वहाँ पे काम करना चाहिए जहाँ पे हमें रिस्पेक्ट मिलती है, हमें अच्छी सर्विस दी जाती है, हमें प्रॉपरली गाइड किया जाता है। जब आप लोग अच्छी सर्विस वाली जगह पे काम करेंगे तब आपको कभी भी मायूसी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। आपने सब लोगों को ऐड करना है। अब मैंने अपने उन फ्रेंड्स को भी ऐड किया था जो मुझे पता था कि इनको काम की ज़रूरत ही नहीं है। जब मैंने उनको इनवाइट किया कि भाई आप, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, आपका कोई जानने वाला इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बताना। उन्हीं दोस्तों ने, उन्हीं के जान पहचान वाले 10-10, 15-15 दोस्त आ गए मेरे पास। अब ये फ़ायदा हुआ, मुझे लगा था कि इनको तो ज़रूरत नहीं है, इन्होंने नहीं करना। भाई आज के दौर में हर बंदे के जानने वाले बहुत हैं। जो लोग खुद नहीं करना चाहते उनके दोस्त होते हैं, वो उनको रेफ़र कर देते हैं। आज के दौर में हर बंदे ने दूसरे बंदे को कहा हुआ है यार कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेम लिस्ट बना ली, इसको यूज़ किस तरह से करना है। नेम लिस्ट मैंने बनाई, उसके अंदर 20 नंबर हैं या 100 नंबर हैं। मैंने क्या करना है, पहले अल्फ़ाबेटिकल तरीके से यूज़ करना है। ये नहीं होता कि आपने नेम लिस्ट बनाई और एक ही दिन में आपने सब लोगों को इनवाइट कर दिया कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये वर्क है, आपने करना हो तो बता देना, शाम तक सबको मैसेज कर दिया व्हाट्सएप के ऊपर। ऐसा नहीं होता। आपने पहले अल्फ़ाबेटिकल तरीके से जिन लोगों के नाम ए से बनते हैं उनको इनवाइट करना है, फिर जिन लोगों के नाम बी से बनते हैं उनको इनवाइट करना है, फिर जिन लोगों के नाम सी से बनते हैं उनको इनवाइट करना है। ऐसे तरतीब से इनवाइट करना है। और इनवाइट करने के अंदर आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है, अगला बंदा आपसे कुछ पूछ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उस बंदे को गाइड अपने सीनियर से करवाएं। अगर हम लोग किसी बैंक्स में जॉब करते हैं या जो फीमेल्स बैंकर हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा कि वो कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर का जब काम करती हैं तो वो उनका काम होता है जस्ट नेम लिस्ट बनाना। नेम लिस्ट के बाद
क्या करना कि क्लाइंट को लेकर अपने सीनियर के पास बिठा देना, सीनियर से गाइड करवाना। डीपीएस मुल्तान टीम स्टूडेंट्स फेयर जॉब आपको ऑफर दे रहा है कि आपने सिंपल वही काम करके सिंपल आप अपनी नेम लिस्ट यूज़ करें, आगे गाइड करना, क्वेश्चन कंप्लीट करवाना, ये आप अपने सीनियर से करवाएं। फिर देखना आपकी टीम किस तरह से ग्रोथ करती है, किस तरह से आपका नेटवर्क बिल्ड होता है, किस तरह से आप लोग एक स्ट्रॉन्ग मेन पावर अपने साथ लेके चल सकते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट आप लोगों ने नेम लिस्ट तो बना ली। नेम लिस्ट बनाने के बाद किस तरह से आप लोगों ने उस नेम लिस्ट के यूज़ करना होता है, इस्तेमाल करना होता है, यानी किन किन वे से, किन किन तरीक़ों से आप लोगों ने उन लोगों से बात करनी होती है चैटिंग के साथ। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, जिन फीमेल्स को हम यूके में, कीनिया में, नाइजीरिया में, स्पेन में, बहरीन में, किसी भी कंट्री में वर्क देंगे तो उन लोगों को बाहर के ममालिक की नेम लिस्ट हम प्रोवाइड करेंगे। बाहर के ममालिक की नेम लिस्ट हम प्रोवाइड करेंगे। आपको इदारा, आपको सिस्टम, आपको सीनियर बाहर के ममालिक की नेम लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे कि आपने सुना होगा कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर क्या हैं, बहुत से कॉल सेंटर बने हुए हैं। वो लोग क्या करते हैं, नाइट में यूके, यूएसए और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में बैठ के अपनी कंपेन करते हैं, कॉल्स करते हैं। सेम हम आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। आपने क्या करना होता है, उस कॉन्टैक्ट लिस्ट को, कस्टमर्स की जो लिस्ट होती है उनको आपने कंपनी की प्रॉपर डिटेल और इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अब जैसे कि हमारे पास नेचरवे जो कंपनी है यूएसए की, उसका हमारे पास पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है और पूरी तरह से उसका कस्टमर नेटवर्क की लिस्ट हमारे पास है। अब कंपनीज़ के अंदर जो प्रमोशंस आती हैं, हम लोगों ने आपको उन प्रमोशंस की क्या करनी होती है, प्रॉपर तरीके से आपको गाइडलाइन देनी होती है। आप आगे कंपनी की वही प्रमोशंस कंपनी के जो क्लाइंट होते हैं उन लोगों को आपने बताना होती है, आपने उनको गाइड करना होती है। इसी तरह आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, एज ए एडवाइज़र बैठ के, घर बैठ के काम करके अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं। जी, तो आज हमने पढ़ा कि हमने नेम लिस्ट लाजमन बनानी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नेम लिस्ट बनानी है। मज़ीद नेम लिस्ट बनाने के अंदर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे रब्ता डायरेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको दिया गया है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।